Good morning and welcome back to the Services Marketing online lectures. Today we are going to determine and talk about the service marketing. So basically the concept of service marketing is like providing some services, providing a product to the people which are intangible basically, which we cannot see. So for building up your basic understanding about service marketing, we should consider at least three things. Number one is defining the services, then defining the service marketing, and recognizing the main marketable service entities. So let's focus on the understanding of the basic concept on services, service marketing, and main marketing services. So when we talk about a service, simply it is how a provider or a producer acts by means of its deeds, process, or performance. So which satisfies the expectation. So basically एक ये deed, process और performance जो है वो एक प्रोड्यूसर कैसे एक्ट करता है, कैसे प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे लिए एक एक्सपेक्टेशंस जो है वो मैच करते हैं हमारे सेटिस्फैक्शन को। ठीक है। एंड कई बार डिप्रिवेशंस भी होता है, कई बार मोटिवेशन भी होता है, कई बार हमारे नीड्स मीट या मैच नहीं होते हैं, हमारे जो आउटपुट्स है वो नहीं मैच हो पाते। तो सर्विसेज आर दी वेज बेसिकली कि किस तरीके से आप वो सर्विस प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल वी आर आल्सो इनटू सर्विस सेक्टर। Now, what we are doing is we are providing service to you. What kind of services? Teaching, sharing the knowledge which we have earned throughout our academics, throughout our teachers training, right? And the way of teachings. तो बेसिकली हमने जो सीखा है हम आपको उसका इस्तेमाल करके जो आपका कोर्स कंटेंट है वो कोर्स कंटेंट हम आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो कठिनाइयाँ होती है आपके सिलेबस से रिलेटेड वो सॉल्व करने की कोशिश करता है एंड देन वी मेक यू एन एलिजिबल पर्सन एंड वी मेक you ready for your semester end exams, internal exams by providing some insights like question answers, fill in the blanks and practically उसका implications कैसे होता है जो भी concept है. So we are also in the service sector. So it depends कि हम कैसे उसको deliver करते हैं. If you are delivering as per your expectations, that means we are matching or we are processing as per your expectations. लेकिन अगर ये expectations पूरे नहीं होते तो demotivation होता है, expectations पूरे होते हो तो motivation आ जाता है. Now we have an example that Facebook provides with social networking features. The British Airways offers with world-class flight experiences. Norvik Hospital offers quality healthcare solutions in Nepal. These all are few examples of services. So Facebook is an intangible thing. Can you touch it? No, we cannot. Can you consume it? Not directly, but we consume it indirectly by killing our time on the Facebook or social networking platforms. ब्रिटिश एयरवेज जो भी एयरवेज हो वेदर इट इज ब्रिटिश और इंडियन और एनी एयरवेज जो भी वर्ल्ड क्लास फ्लाइट एक्सपीरियंस दे रहा है दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज राइट देन एक हॉस्पिटल है नॉर्विक हॉस्पिटल कंसिडर एनी हॉस्पिटल जहाँ पे आपको हेल्थ केयर सर्विसेज मिलता है फॉर एग्जाम्पल आपके घर से या आपके रिलेटिव्स में फैमिलीज में फ्रेंड्स में कोई हॉस्पिटलाइज है मे बी फॉर कपल ऑफ डेज और वीक्स एंड कंटिन्यूसली यू आर मीटिंग दैट पर्सन पर्सनल केयर आप ले रहे हो बिकॉज बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है एंड देन you continuously communicate with the doctors, the staff members, the nurse, the admin departments and at the end वो जो व्यक्ति है वो डिस्चार्ज हो जाता है. नाउ यू पे देयर बिल्स. ठीक है, जब हम उनके बिल्स पे करते हैं दैट मीन्स वी आर पेइंग फॉर देयर सर्विसेज, वी आर पेइंग फॉर देयर टाइम, वी आर पेइंग फॉर देयर एक्सपीरियंसेस. नॉर्मल बुखार आता है हमारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं फैमिली डॉक्टर्स के क्लिनिक में तो भी हम लोग उनको कुछ पे करते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर गिविंग अस सर्विसेज विच इज नॉट टेंजिबल. नाउ ये सर्विस डिपेंड करता है कि जो देने वाला है दैट इज प्रोड्यूसर वो किस तरीके से दे रहा है. हाउ अ प्रोवाइडर और प्रोड्यूसर एक्ट्स by means of its deed,
प्रोसेस और परफॉर्मेंस, जो उनके जो एक्ट है, उनका जो डीड, प्रोसेस और परफॉर्मेंस वो कैसे डिलीवर करते हैं, उस पे वो सर्विसेज डिपेंड करता है. Now, the quality of such services relies on effectiveness of the action of the provider. अब ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो रिलाई करता है, उसका जो इफेक्टिवनेस है वो प्रोवाइडर के एक्शन के ऊपर रिलाई करता है, डिपेंड करता है. कैसे? आप किसी किराना शॉप में जाते हो, सिर्फ 4 ही लोग हैं, एंड यू वांट ओनली वन थिंग. कोई भी एक प्रोडक्ट आपको लेना है. फॉर एग्जांपल, सुबह सुबह जाते हो आप, ब्रेड लेने जाते हो, बट देन देर आर 3 पीपल हु आर विद द लिस्ट. तो आप लॉजिक लगाइए कि एक इंसान को एक सामान चाहिए तो वो देकर आपको फ्री कर सकते हैं. दैट इज कि एक सामान है, दो पैसे लो, एक्सचेंज करो मॉनेटरी टर्म्स, एंड देन बाय बाय, थैंक यू. और जिनके पास लिस्ट है, दे कैन वेट बिकॉज दे नो कि उनके पास पूरा लिस्ट है 10-15 सामान का. सो लॉजिकली अगर सोचा जाएगा तो एक्ट जो है यहाँ पे किराने शॉप वाले का, दैट डिपेंड्स. अगर आपको एक सामान के लिए हाफ एन आवर लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम यू वोंट गो इवन दैट किराना शॉप इज फ्री. एक बार आपके साथ खटास आ गई, आपके दिमाग में वो बैड एक्सपीरियंस आ गया, तो यू वोंट डू और यू वोंट गो टू दैट पर्टिकुलर किराना शॉप. आप 1 किलोमीटर दूर चले जाओगे, आप बाइक लेके, स्कूटी लेके, अपना कोई भी व्हीकल लेके या फिर ऑटो करके आप कहीं दूर से अच्छा ब्रेड लेकर आओगे, बट आप फिर से वहां नहीं जाओगे बिकॉज द क्वालिटी ऑफ योर टाइम, योर सर्विसेज मैटर्स. सो द वे दे आर प्रोड्यूस्ड, द वे देयर, देयर मीन्स जो सर्विस प्रोड्यूसर है, जो सर्विस गिवर है, वो किस तरीके से आपको सर्विस दे रहे हैं और जो सर्विस का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहे हैं. अगर आपने जाकिर खान के कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज देखे होंगे तो उनमें एक लेवीज एंड सैमसंग का कुछ एक्ट है. नाउ ही एक्ट्स एज इन कि लेवीज के शॉप में आप जाते हो तो कुछ सेल्समैन के कैरेक्टर को उन्होंने बताया है. नाउ लेट अस से कि आप भी ऐसे ही कहीं शॉप में जा रहे हो, एक स्टैंडर्ड शॉप में जा रहे हो. You want to buy something, but you need assistance. Without assistance, you may not complete the buying process. लेकिन आप शॉप में गए, उस पर्टिकुलर आउटलेट में गए, एंड नो वन इज बॉदरिंग यू. है, लोग है, पीपल आर देयर, द एम्प्लॉयज आर देयर, दे आर वॉचिंग यू, दैट आप देख रहे हो यहाँ वहाँ कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, बट दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दे आर नॉट गिविंग अटेंशन टू यू. आप थोड़ा देर देखोगे, इधर उधर कोशिश करोगे पूछने का, एक आएंगे कोई इंसान, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एंड जाएंगे. अगेन समवन विल कम, आप ढूंढ ढूंढ के उनको बुलाओगे एंड पूछोगे इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, वो बताएंगे एंड देन वैनिश. अगर कोई भी आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मे बी दे मे बी बिजी, बट हमारे तरफ से बीइंग अ कस्टमर हमारे लिए क्या होता है, वो एक बैड एक्सपीरियंस है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विसेज, हमारा जो अभी माउथ पब्लिशिंग है उस पर्टिकुलर आउटलेट का नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव मार्केटिंग सर्विस का हो रहा है अभी. सो बेसिकली वॉट एवर सर्विसेज आर देयर, इट डिपेंड्स कि वो, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो इफेक्टिवनेस है, उसका जो प्रायोरिटीनेस है, वो डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, ना कि सर्विस रिसीवर के ऊपर. सर्विस प्रोवाइडर को हर एक कस्टमर सेम है. ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि रिच कस्टमर है, पुअर कस्टमर है, मिडिल क्लास कस्टमर है. फॉर देम कस्टमर इज कस्टमर और client is client. Now when we talk about services, it is an intangible and more perishable component. क्यों perishable है? Because see, now I am taking lecture. The way of taking lecture might be different right now and might be different after an hour. It depends. It depends on individuals, it depends on the time, it depends on the climate as well, right? अगर समझिए आप आउटलेट में जा रहे हो, बहुत बारिश है एंड सेल्स पर्सन इज ऑल्सो एंटरिंग एट द सेम टाइम, तो उनका जो वो टाइम का सर्विस प्रोवाइड करने का जो तरीका है मे भी अलग होगा. एंड ऐसे एम्प्लॉय से आप सर्विस ले रहे हो जो ऑलरेडी सुबह से सूखा है, आई मीन नॉट वेट इन द रेन, एंड
वेरी मच अट्रैक्टिव एंड एक्टिव, तो उनका जो सर्विस देने का तरीका है वो अलग है. सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. लेकिन सबके जो सर्विस प्रोवाइड करने के बेंचमार्क्स है, स्टैंडर्ड्स है, वो ऑलरेडी उनको सिखाया जाता है एंड दे नीड टू फुलफिल देम. सो services may be referred to as an intangible and more perishable component of any business offering. Then normally the production and consumption of services takes place simultaneously. Now, like, I am providing you a service and you are consuming my service. You have paid your fees to the institution, they are giving me the returns for my services. Simple. So it is a continuous process and it is a simultaneous process. Simultaneous means मैं service दे रहा हूँ and you are consuming that services. When we visit doctors, doctors gives us services and we consume that service at that particular point of time only. आपको कोई ड्राइविंग सिखा रहा है, यू आर कंज्यूमिंग, यू आर यूजिंग दैट सर्विसेज एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो गिविंग एंड टेकिंग, सो गिव एंड टेक का जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है हमारे सर्विसेज में. द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सच मे बी बिजनेस एज वेल एज प्योरली सर्विस टू दिस सोसाइटी. अब जब सर्विस हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका मेन पर्पस होता है बिजनेस, ठीक है. या फिर कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो प्योरली सर्विस देने के लिए आते हैं सोसाइटी में. There is big difference between the service offered by service not for profit organization and services at cost organization. So let's consider services at cost proposition in business. तो दो तरीके के services offer होते हैं अभी. Services not for profit organization and services at a cost organization. Services not for profit means the people are providing services without any consideration of profit. उन्हें profit की चिंता नहीं है, ठीक है. They are not working or providing services for profit. They are providing services to may भी like social working का काम हो, society welfare के काम हो, social welfare के लिए हो सकता है. And then second one is service at a cost organization. Organization के cost के ऊपर वो services आपको provide किया जाता है. So let's consider service at a cost proposition in business. So, defining the service marketing, the overall approach of generating awareness, interest, and desire to consume service that are put on offer the provider may be referred to as service marketing. तो एक overall approach है हमारे लिए, एक awareness generate करना है, और इस awareness generation में AIDA आता है, that is interest, desire, and action. सो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन जब हम लोग बात करते हैं, दैट रेफर्ड टू एज सर्विस मार्केटिंग. एंड जब ये ऑफर के साथ हम लोग पुट फोर्थ करते हैं कंज्यूमर के सामने, तो उसे हम सर्विस मार्केटिंग कहते हैं. सो बेसिकली हम हमारे कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है उनको अवेयर कराते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके इंटरेस्ट से है. आर यू डिजायरेबल और आर यू विलिंग टू पे फॉर दिस, आर यू टेकिंग एन एक्शन एंड स्टार्टिंग द बाइंग प्रोसेस. ठीक है. सो अवेयर कराना, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको प्रोडक्ट दिखाना, उनके डिजायर्स, उनके डिजायरेबिलिटीज, उनके विलिंगनेस को पहचानना और उनके एक्शंस को देखना. और ये पूरा जो कंज्यूमर सर्विसेज है वो जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसे सर्विस मार्केटिंग कहते हैं. नाउ सर्विस मार्केटिंग में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? बिकॉज जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आप जो है लोगों को प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते. आप प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते, और जब तक बात नहीं कर सकते तो आप अपने इंफॉर्मेशन को पास ऑन नहीं कर सकते. समझ रहे हो? सो इवन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑनलाइन लेक्चर्स में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, तो क्या वो कम्युनिकेशन होगा? नहीं ना. सो कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग when it comes to services.
आपको आपके सर्विसेज को प्रोवाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप किसी आउटलेट में जा रहे हो एंड आपके साथ कोई बात नहीं कर रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो कम्युनिकेशन. So communication of the core meaning, benefit and procedures of consumption of a services, making it convenient for the reach of target consumers, building a sound inbound and outbound logistics support system, selection, development and promotion of an effective service distribution network, and developing and promoting systems visibility are a few integrated functions related to marketing of services. अब जो भी हाइलाइटेड नाम या आपको कंसेप्ट दिख रहा है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं. नंबर वन, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर द रीच ऑफ टारगेट कस्टमर्स. कम्युनिकेशंस को हमें कन्वीनियंटली रीच कराना है हमारे टारगेट ऑडियंस को. हमारे लिए, फॉर मी, द टारगेट ऑडियंस आर यू. क्यों? बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग आवर सर्विसेज. डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हमारे ऑडियंस हो. समझिए, पूरा का जो पूरा नोट्स है इंग्लिश में है. I am teaching you the whole concept in English, but somewhere my language may not be convenient for your understanding. हम continuously इंग्लिश में बात करते जा रहे हैं and you are unable to understand. There may be many reasons, not just कि आपको इंग्लिश नहीं आता है. ऑनलाइन लेक्चर्स है. The way of communication matters. The speed of communication matters. The way of pronunciation matters. The way of looking or attending the lectures matters. If you are just plugging in and log in कर रहे हो, आप headphones plug कर रहे हो अपने कान में and then you are chilling out at your place, matters. That means you are not interested, you are just attending for the sake of attendance. लेकिन आप बुक पेन लेके नोट्स बना रहे हो, साथ ही साथ में एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर रहे हो, हाइलाइट्स के जो पॉइंट किए हुए हाईलाइट किए हुए उसे आप नोट डाउन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड. सो एट दैट पॉइंट जो कन्वीनियंट है हमारे कस्टमर्स का वो हमें मैटर करता है. सो इफ यू आर कन्वीनियंट कि सर पूरा लेक्चर इंग्लिश में लीजिए, एंड दैट्स बेस्ट. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हिंदी लैंग्वेज इज नॉट प्रेफरेबल फॉर लेक्चर्स. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू make communication in English only. They want to keep their standards. They want to maintain that uh, what we say is etiquettes कि सर हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में एग्जाम लिखना है, then communicate with us in English. We want to improve our language. We want to improve our no communication skills, etc. So whatever the convenient is, we need to provide. अगर आप एक होटल में चेक इन कर रहे हो और आपके होटल में एसी काम नहीं कर रहा है, that means that service is not convenient for you. So what we will do, आप रूम सर्विस में कॉल करेंगे, उनको कंप्लेंट करेंगे कि सर एसी इज नॉट वर्किंग, एंड देन वो आके आपको आपके सर्विस का जो काम है वो करके देंगे. राइट? सो बेसिकली आपका जो कन्वीनियंट है वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है सर्विस प्रोवाइडर के लिए. समझिए, आपको कन्वीनियंस के लिए आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा, बिकॉज ही माइट बी supervising 150 rooms, maybe 20 rooms, 40 rooms, depends. Then the other topic and concept is building a sound inbound and outbound logistics support system. Whether it's a product, whether it's an intangible product or tangible product, logistic support तो हमें चाहिए. लेकिन जब आप कोई सर्विस को ऑप्ट करते हो एंड देन वहां पे एट द एंड फिजिकल प्रोडक्ट आ जाता है, तो हमारे लिए वो इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट सिस्टम जो है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. समझिए, आप रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हो, दैट इज टेंजिबल, लेकिन आपको सर्विस कौन दे रहा है? एक इंसान जो इंटेंजिबली आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपको उस टेंजिबल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. सो आपको वो इंफॉर्मेशन देने की काम कर रहा है, दैट इज अवेयरनेस दे रहा है, आपको इंटरेस्ट दिला रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, आपका डिजायर जो है वो बढ़ा रहा है एंड आपको मजबूर कर रहा है कि आप ये वॉशिंग मशीन या फ्रिज खरीद लो. अगर आपने डन कर दिया तो आउटबाउंड प्रोसेस उनका लॉजिस्टिक सिस्टम का चालू हो जाता है. दैट मीन्स उनके वेयर हाउस से, उनके स्टोर हाउस से वो प्रोडक्ट
बाहर जाएगा एंड देन आपके घर में आएगा, एंड देन वो आउट हो गया तो उनको एक और नया प्रोडक्ट लेकर आना पड़ेगा, तो साउंड इनबाउंड होना चाहिए उनके पास। तो साउंड मीन्स वेरी एक्टिव एंड वेरी मच मैनेज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। देन उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो ये जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। क्यों वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए? अगर आप कोई एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हो किसी आउटलेट में एंड यू आर आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग फॉर मोर ऑफर, एंड आप बार्गेन कर रहे हो सीरियसली एंड लिटरली, एंड देन स्कोप है वहां पे, एंड वो एग्जीक्यूटिव फिर जाते हैं अपने फ्लोर मैनेजर के पास, एंड देन ही आस्क्स that so and so customer is willing to buy products in huge quantity, but he she wants some discounts. अब जब हम डिस्काउंट्स के बारे में बात करने गए हैं मैनेजर के पास, तो हम बीइंग अ कस्टमर हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं 1% के चांसेस है कि हमें जो एक्सपेक्टेड डिस्काउंट है वो मिल जाए, एटलीस्ट उसका 50% भी मिल जाए तो वेल इनफ है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेटवर्क जो है काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव इज कनेक्टिंग टू हिज इमीडिएट सुपीरियर, दैट इज फ्लोर मैनेजर। सो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत इफेक्टिव होना चाहिए और वो डेवलप करके हमेशा प्रमोशनल लेवल पर होना चाहिए। Then developing and promoting system visibility are few integrated functions related to marketing of services. जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका सर्विसेज है, वो विजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स आप जिस तरीके से सर्विस दे रहे हो वो कस्टमर को दिखना चाहिए कि यस, दिस सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द सर्विसेज इन अ वेरी बेटर वे। अगर आप किसी हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे भी वेल स्ट्रक्चर्ड और विजिबल सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आपका नाम नंबर लिखा जाता है, आपको बताया जाता है आपका कौन सा नंबर है, एंड देन उसके बाद फिर आपको बताया जाता है कि आपका आने वाला नंबर पांचवा है, छठा है, सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो थिंग। सो दे आर वेल स्ट्रक्चर्ड, जो सिस्टम है वो विजिबल है, एंड यू आर वर्किंग इन वेरी परफेक्ट वे। So, ordinarily, service marketing can be linked to overall approach adopted by a firm to to promote the service component of its offering, no matter whether it's a core offering or augmented one. The key functions related to marketing of services will include branding and packaging of service, performance, advertising, and publicity about the services on offer. So, basically, हम जो अभी सर्विस मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल अप्रोच को अडॉप्ट करता है। जो भी फर्म्स इसको प्रमोट करते हैं, उनके जितने भी सर्विस कंपोनेंट्स हैं, उनके जितने भी ऑफरिंग्स है, वो ऑफरिंग्स को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कंसिडर करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू की फंक्शंस रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, हमें उसमें कुछ ना कुछ ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है, सर्विसेज को एक पैकेज में लाना बहुत जरूरी है, और उसके परफॉर्मेंस को भी काम करना बहुत जरूरी है। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट जो है एक एग्जांपल लेकर हम लोग बात करते हैं। सी, आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हो, हॉस्पिटल अपना ब्रांडिंग करता है, हमेशा करता है, चाहे वो आप कोई भी सिटी में हो। क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दी सोसाइटी। तो ब्रांडिंग करके कुछ सर्विसेज का पैकेजिंग करते हैं। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो इस पर्टिकुलर रूम के लिए इतना पैकेज है, उस पर्टिकुलर रूम के लिए इतना पैकेज है, डिलक्स के लिए इतना है, सिंगल के लिए इतना है, शेयरिंग के लिए इतना है। दे हैव सम पैकेज ऑफ सर्विसेज। एंड कई हॉस्पिटल्स में तो ऐसा होता है कि आपको, आपके विजिटर्स को आने की जरूरत नहीं है कंटिन्यूसली, क्योंकि खाना भी वही देते हैं, दवा भी वही देते हैं, देयर क्लीनलीनेस भी अपने पेशेंट्स का वही कराते हैं। सो दे आर प्रोवाइडिंग पैकेज ऑफ सर्विसेज। नाउ, एडवर्टाइजिंग परफॉर्म करना। तो आप क्या करते हो बीइंग एन हॉस्पिटल? हम अच्छे तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग करते हैं। हमारे लिए सर्विस प्रोवाइडिंग में बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम आते हैं। सो व्हाट वी डू, बड़े बड़े डॉक्टर्स, स्पेशलाइजेशंस, ये हम हमारे एडवर्टाइजिंग में दिखाते हैं और पब्लिसिटी करते हैं कि हमने जो भी काम किया है बहुत बेहतरीन किया है। अब कोविड सिचुएशन में हॉस्पिटल्स डिवाइड किए गए हैं, कोविड एंड नॉन कोविड।
तो अगर एक ही हॉस्पिटल को दो डिवीजन किया गया है तो दे विल प्रमोट लाइक वी हैव exclusively COVID center and exclusively non-COVID center. Both are different and your patients would not get infected or inflicted अगर वो non-COVID patient है तो etc. So basically branding, packaging of services, performing advertising and publicity about the services on offer, and then promoting the business partner that leverages marketing and promotion of services across the market. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बेसिकली हमने सर्विसेज के बारे में पढ़ा, सर्विसेज के फंक्शंस पढ़े, और ओवरऑल कंसेप्ट क्या है इस सर्विस का और सर्विस मार्केटिंग का बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हमने बात किया। सो अगर कोई भी डाउट है तो वी कैन टॉक राइट नाउ, वी कैन डिस्कस राइट नाउ। अगर कोई डाउट नहीं है तो वी कैन सिंपली वाइंड अप द लेक्चर।